Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from DSD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Students, as we are doing the chapter number 1, that is sets. Now, the today's topic that we will work on it, that is practical problems on union and intersection of two sets or three sets. In the last video, we had learned about union, intersection and difference of two sets. Now, in this video, we will go through some practical problems related to our day-to-day life. The formula that derived in this video will be used in subsequent chapter like probability. So, let me start with the formula. The first formula is A union B, that is equal to NA plus NB minus NA intersection B. Here N that denotes the number of element. In the similar way, if we have a two set, then we have to use this one formula. But if we have three set, then we have to use this one formula. The next formula is A union B union C, that is equal to A plus B plus C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. So these two formula we will use in this exercise 1.6. Basically in this exercise we will use just one formula, that is A union B. But in this exercise we will do the same question with the formula as well as Venn diagram also. The same question we can proceed with both the things. So let me start with the exercise 1.6. In the 1.6 we have a statement sum. So let me start with the question number 1. In the question number 1 you can see that if x and y are two sets such that the number of element in x is equal to 17 and the number of element in y that is equal to 23 and x union y that is equal to 38. Now we have to find out x intersection y. So according to this we have a formula. Here first of all we will write down the data. According to the data, the number of element in x that is equal to 17, the number of element in y that is equal to 23 and x union y that is 38, and we have to find out x intersection y. So we have a formula, you can see the same formula. So here in place of AB we are using x and y. So x union y that is equal to x plus y minus x intersection y. The value of x union y that is equal to 38 and the value of x is equal to 17 and the value of y that is equal to 23 and the x intersection y, we have to find out this. So we just put down the value here and when at the last we can find out x intersection y that is equal to 2. So it is very simple, directly just we have to put down the value. Now let me see the question number 3 now. Now in the question number 3, the question is, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? So let me see this question. Now in the question number 3, first of all there is a given the group of 400 people. 400 people means A union B is equal to 400. Next there is given that the 250 people speak Hindi. तो हमने यहाँ हिंदी को A ले लिया है एंड द अदर लैंग्वेज इज इंग्लिश, उसको मैंने B डिनोट कर दिया है. तो हिंदी और इंग्लिश को जो कंबाइन बोल रहे हैं टोटल पर्सन दैट आर 400. जो हिंदी बोल रहे हैं दैट इज़ 250 एंड द इंग्लिश इज़ 200. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पर्सनस दोज हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. तो हमें वो फाइंड आउट करना है. Now we have to find out A intersection B, that is Hindi and English. So now we have a formula that the A union B that is equal to NA plus NB minus A intersection B. हमने वैल्यूज़ पुट कर दी सारी, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्विंग इट वी गेट द 50 एज अ आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है. नाउ लेट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. In the question number 5, you can see if x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements.
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई हैव। तो हमें सिर्फ y के एलिमेंट्स निकालने। x के एलिमेंट 40 दिया था, x यूनियन y 60 दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y 10 दिया हुआ है एंड y हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ फॉर्मूला एंड हम फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला अप्लाई करना है और सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा हमने। तो x यूनियन y 60 and x we have 40 and y we have to find it out. X intersection y is 10 and after applying the formula we get this 30 answer. चलिए let me move to the next question, that is question number 7. In the question number 7, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket and how many like tennis? यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट इज दैट हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, खाली टेनिस लाइक करते हैं, नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, जो टेनिस और क्रिकेट मतलब थोड़ा सा क्रिकेट भी लाइक करते हैं, दैट इज़ ओके। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट वी कम ऑन द फर्स्ट पे। क्रिकेट 40 स्टूडेंट कर रहे हैं, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, जो क्रिकेट एंड टेनिस को लाइक कर रहे हैं, दीज आर 10 एंड जो दोनों को लाइक कर रहे हैं दैट इज़ 65। टोटल जो पीपल्स हमें दिए हुए हैं, टोटल पीपल्स कितने दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ 65। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टेनिस, टेनिस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, वैल्यूज़ हमारे पास सारी आ चुकी हैं, तो हमने ये टेनिस निकाला। अब इसमें दो क्वेश्चंस पूछे थे, एक तो था कि दोज हु लाइक टेनिस एंड सेकेंड इज़ दैट दोज हु ओनली लाइक टेनिस। ओनली लाइक टेनिस में वो नहीं आएंगे जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, तो वो 10% ऐसे हैं जो टेनिस एज वेल एज क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं। तो हम यहाँ पे से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 25 इज़ द आंसर, दोज हु जस्ट लाइक द टेनिस, सॉरी क्रिकेट नहीं लाइक करते हैं, टेनिस लाइक करते हैं। अब मैं इसको एक बार वेनर डायग्राम से भी बता रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट सर्कल, दिस इज़ क्रिकेट, दैट इज़ इक्वल टू 40 एंड द सेकेंड सर्कल दैट इज़ फॉर द टेनिस। टेनिस के हमें नंबर नहीं पता, 40 हमारा टोटल सर्कल है और इन दोनों में जो कॉमन है दिस वन दैट इज़ अ इंटरसेक्शन पार्ट, ऑल ऑफ यू नो दैट, वो कितना है 10। तो ये पोर्शन जो इतना इधर का बच गया, ये कितना हो जाएगा 30। वाई, द होल सर्कल इज़ 40, 30 + 10 दैट होल सर्कल विल बिकम 40, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है बट अभी हमें नहीं पता। ये पूरा हमें जो यूनियन दिया हुआ है दैट इज़ 65, ठीक है। अब हमें पूरा सर्कल इन तीनों पोर्शंस का सम जो दिया हुआ है 65 के इक्वल दिया हुआ है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 25 की जगह x अजम कर लेती हूँ, तो बेसिकली क्या हो गया 30 + 10 + x, ये हमें गिवन है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हाउ कैन यू फाइंड इट आउट, 65 - 40 एंड इट इज़ इक्वल टू 25। तो ये जो पोर्शन है खाली दिस वन सर्कल दैट इज़ इक्वल टू 25। अब हमारे पास ये कौन सा पोर्शन आ गया, x कौन सी वैल्यू है, द पर्सन दोज हु ओनली लाइक टेनिस, जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, तो ये 25 आ गया। अगर अब मैं बोल रही हूँ जो टेनिस को लाइक करते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 25 में हम 10 को ऐड कर देंगे, वाई, ये जो 10 है ये पूरा सर्कल तभी बनेगा टेनिस का, सो इट विल बिकम 35। तो ये दो वे हैं, वन इज़ दिस एंड द सेकेंड वन इज़ दिस। तो यू कैन प्रोसीड विद एनी वन, दैट इज़ योर वे। चलिए लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish, and 30 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two language? अब यहाँ पे हमें बताना है कि कम से कम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं दोनों में से। तो इसमें दिया क्या हुआ है, फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं 50, स्पेनिश 20, फ्रेंच एंड स्पेनिश दैट इज़ 10। एटलीस्ट मतलब क्या होगा, कम से कम एक और दोनों, ठीक है। तो दैट मीन्स यूनियन हो जाएगा एटलीस्ट जब भी आ रहा है। तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो वी हैव अ फॉर्मूला, ये सबको अब फॉर्मूला पता चल गया है, ये सब भी डाटा हमारे पास आ गए, वी कैन फाइंड इट आउट। मैं इसको एक बार वेनर डायग्राम से भी कर रही हूँ। ये हमारे पास फ्रेंच का है, दिस वन सर्कल इज़ फॉर द स्पेनिश,
फ्रेंच के टोटल कितने हैं 50, स्पेनिश के हैं 20। दोनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो है 10। अब 50 में से 10 गया तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 40। अब आप सबको पता चल गया होगा कि 40 क्यों आएगा। इन द सिमिलर वे 20 था पूरा तो 10 यहाँ आ जाएगा। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो एटलीस्ट मतलब चाहे तो फ्रेंच चाहे स्पेनिश और दोनों, कम से कम एक या दोनों, तो टोटल आंसर कितना आ गया 60। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। I hope that all of you get clear the concept. Thank you student and have a nice day.